ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ 6ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹ ਬਾਜ ਨਾ ਜੀਆ ਜਾਈ, ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਖਾਲ ਅਖਾਈ। ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਹੀ, ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ਬਾਝ ਨਾ ਜੀਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਨੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੰਬਰ ਨੇ, ਔਲੀਏ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ
कि जिह बाज ना जिया जाए, कि जिस तो बिना साडी कोई जिंदगी नहीं है। जे जिंदगी है तो परमात्मा दे आसरे, ते जिस परमात्मा दे आसरे ये शरीर है, जिस परमात्मा दे आसरे ये साडी आत्मा है, जिस परमात्मा दे आसरे साडे अंदर मन काम करता है, जीव आत्मा काम करता है, उस परमात्मा नूं किवें भुलाया जाए। तो जो मूल नूं भुल जाते हैं, खुआर भी उही हुंदे है, भटकणा विच भी उही पैंदे है, वहम भी उन्हां अंदर ही आउंदे है, भरम भी उन्हां अंदर ही पैंदे है जो एक नूं विसार लैंदे है। ते जितने महापुरख हुंदे है उन्हां सारियां दा जोर लगदा है यही गल कहण विच कि रब एक है, एक नूं पहचाणो, एक दी आराधना करो, एक दा ही सिमरन करो। असीं केवल रस्ता दसदे हां, तुहाडा सहारा बनदे हां, तुहानूं पहुंचावांगे उत्थे जिथों तुसीं तुरे हो। तो यात्रा आरंभ हुई है परमात्मा तो आत्मा दी। तो आत्मा कई पड़ावां विचों लंघ के आउंदी है, फिर मनुख बनता है, फिर मनुख ने आत्मा का ज्ञान लै करके परमात्मा विच लीन होना है। तो भगत जी कहते हैं जदों पूजा ही दूजे की होएगी तो मुक्त नहीं होएगा। तो आराधना उसकी करनी चाहिए है जिस तो बिना जिया ही नहीं जा सकता, जिंदगी ही नहीं है। जिवें मछली का जीवन पानी है, तिवें ही हरेक मनुख जिहड़ा है उसकी जिंदगी है तो रब्बी प्रकाश करके, रब्बी नूर करके, रब की बख्शिश करके। तो जदों कोई गुरु की बरकत का पात्र बन जाए, उत्ते उपर बख्शिश हो जाए, गुरु के दसे मार्ग ते चले कि जो गुर दसे वाट मुरीदा झोलीए, बाबा शेख फरीद की बाणी कि जेड़ा रस्ता गुरु ने दसिया है उस रस्ते जो कोई चलता है तद फिर वो जिहड़ी घाल है वो थाएं पैंदी है कि गुरु ने जो घालना घालन वास्ते कहा। जिवें गुरु ने कहा नाम जपो, ये बहुत वड्डी घालना है। जे कोई घाल लै, घालना का अर्थ हुंदा कमाई, जे कोई कर लै। तो गुरु नानक देव महाराज जी कहते फिर गुरु के आखे ला के, गुरु की मर्यादा विच रह करके कि नानक हुक्म है जे बुझै, जे उसने हुक्म नूं बुझ लिया, समझ लिया कि मेरे गुरु का हुक्म की है तो मेरा मन कर की रहा है। जदों इस हुक्म नूं समझदा है तो जिहड़ी अंदरली हौमे है मैं करन वाली वो खत्म हो जाती है। जदों ही हौमे की अंदरों कंध टुट जाती है, जदों मैं मेरी खत्म हो जाती है तो अंदर की रह जाता, तू है तू है तू है। वो फिर तू का जाप जपन लग पैंदा। जले हैं, थले हैं, अभू हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं। फिर उस परमात्मा नूं ही वेखण लग पैंदा, जल विच, थल विच, धरती विच, आकाश विच, अपने शरीर विच, बाहर विच, चार सवेरे उसका प्रकाश नज़र आउण लग पैंदा। ये जदों घालना कोई घालदा है तो जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। बड़ी मशक्कत है, बड़ी घालना है जे कोई नाम जप लेगा। नाम जपिया नहीं जाता, जे कोई नाम जपदा है तो गुरु वाला नहीं बनया हुंदा, क्योंकि अमृत नहीं उन्हें छकिया हुंदा। जे कोई अमृत छक लैंदा है तो नाम तो जपदा है पर कुरैता करदा है, पूरी रहत नहीं रखदा। तो इस करके जदों कोई हुक्म नूं चंगी तरह समझदा है कि मेरा मन की कर रहा है तो गुरु मेरा की कह रहा है, तो गुरु के मुताबिक जो कोई घालना घालदा है, फिर जाओ मिले तां खाल अखाई। फिर जिस परमात्मा नूं मिलण वास्ते वो घालना कर रहा सी, जिस गुरु की खुशी लैण वास्ते वो घालना घाल रहा सी, जदों वो घालना उहदी थां पै जाती है तो गुरु की प्राप्ति हो जाती है।
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो तृप्त हो जाता, रज जाता, ਉਹਦੇ अंदर कोई भुख ही नहीं रह जाती। कि साचे नाम की लागै भूख, कोई है अंदर भुख, केवल नाम की भुख, होर कोई भुख नहीं। काम वासना की कोई भुख नहीं, धन पदार्थ जोड़न की कोई भुख नहीं, बहुता रज के तरह तरह के पदार्थ खाण की कोई भुख नहीं। तो सतगुर जी कहते साच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। ये मन के अंदर भुख होंदी है रूप रंग वेखण दी, मन के अंदर भुख होंदी है धन पदार्थ जोड़न दी। ये जिहड़ियां अंदरलियां वासना हैं ये साडे अंदर भुख पैदा करदियां ने, ते उन्हां दी तृप्ति हुंदी नहीं, बंदा भटकदा रहिंदा, टिका किते नहीं आउंदा, मन टिक के बैठदा नहीं। ते जदों गुरु दे हुक्म नूं असीं कमाउंदे हां, हौली हौली साडी अंदरली भुख मरदी जाती है कि वासना अंदरों खत्म हो जाती है। फिर जिंदगी जिउंदी तां रहिंदी है ते उन्नी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। दुनिया के सारे बंधन टुट जाते हैं, बंधन पैंदे भी वासना करके है, तृष्णा करके है। जदों अंदरों तृष्णा ही खत्म हो गई, जदों अंदरों वासना ही खत्म हो गई, बंधन तो सारे टुट जाएंगे। फिर अन्न पानी उतना कोई खाधा जाएगा जितना को शरीर बच जाए। तो शरीर किस वास्ते बचाना है कि परमात्मा ने मनुखा जन्म दिलभ दिता है, इस तो वध सेवा ली जाए, इस शरीर नाल वध तो वध सिमरन किया जाए। खुराक उतनी को खानी है जितने नाल शरीर कायम रहे। तो शरीर नूं कायम रख के करना की है, सेवा ते सिमरन ते पर उपकार दे काम। तो भगत कबीर जी कहते हैं, जिह बाज न जिया जाए, जिस परमात्मा तो बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। ते उस परमात्मा नूं मिलना होवे तां फिर गुरु वाले बनना पैंदा है। जदों गुरु वाले बन जाइए, जदों गुरु वाले बन जाइए, जो गुरु ने हुक्म किया उस हुक्म की जेकर घालना घालीए, उस हुक्म नूं कमाईए तो कमाई करिए हुक्म की। फिर की हिंदे जो मिले, फिर जिस की घालना की जा रही है वो मिलता है आन के। तो बेअंत इस तरह हिस्टरियां ने, साखियां ने कि जिवें शिव नव राजे ने बड़ी आराधना की है, क्योंकि भाई मन सुख ने उन्होंने चेटक ला दी गुरु नानक देव महाराज ने। तो गुरु नानक देव महाराज ने दर्शन करने वास्ते बहुत सिमरन किया है शिव नाम राजे ने। तो गुरु नानक देव महाराज जी चेचे तौर पर फिर उसका धार करने वास्ते, उन्होंने मिलने वास्ते उत्थों तक पहुँचते हैं। इस तरह ही गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जो कलगीधर पिता ने, तो जेकर माता याद करती है कि मैं चोला हथी सीता है तो दशमेश पिता नूं देना है, तरमाशीवाड़ के जंगलों विचों फिर महाराज जी चेचे तौर पर उस माता का चोला भी कबूल करते हैं। फिर उस ही चोले नूं रंगाया जाता है तो महाराज जी पहनते ते उचदे पीर बनते हैं। इस तरह ही कश्मीर के इलाके विच माता याद करती है कि मैं हाथी चोला तैयार किया है, बहुत बजुर्ग हो चुकी हाँ, कि सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मैं जिहड़ा ये चोला है तैनूं हत्थीं भेटा करनी चाहुंदी हाँ। तो पुत्र कहता है कि ये चोला असीं अंमृतसर साहिब विखे पहुँचा दिंदे हाँ, माता तेरी भेटा कबूल हो जाएगी। पर वो कश्मीर के इलाके च बैठी हुई माता इको ही गल कहती है कि नहीं, मैं अपनी हथीं गुरु नूं अर्पण करना है। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी उस माता का प्रेम वेख के, उहदी घालना वेख करके, उहदी कमाई वेख करके चेचे तौर पर उस इलाके पहुँचते हैं। फिर वो हथीं उस माता का बनाया होया चोला लेंदे हैं, तो नदरी नदर निहाल कर देंगे, बख्शिशां नाल भर देंगे हैं। इस तरह फिर उस माता नूं कितनी खुशी हुंदी है। जिवें भाई महा सिंह जी सहकते हैं फट्टड़ होए, तो है तो वो पहला गुरु वाले,
तो जो गुरु ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੂ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ तो इस जिंदगी ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੇ, बड़ी घालना की कि इतनी घालना इतनी कमाई कि गुरु तो बिना असी जी नहीं सकते, असी मर जावांगे गुरु की खुशी लैन वास्ते। तो गुरु की खुशी लैन वास्ते ये 40 मुक्तियां ने अपना आप कुर्बान कर दिता। तो भगत कबीर जी कहते हैं जो मिला है तां खाल अखाई। जदों फिर ओदी प्राप्ति हुंदी है, जिस गुरु का हुक्म मन्नीदा है, जिस गुरु के हुक्म की कमाई करीदी है, उन्होंने याद करीदा है। ये बड़ी वड्डी घालना है। तो जो कोई घालना घाल लेंदा तो आके फिर जो गुरु मिलता है तो अंदरों सारिया वासना खत्म हो जांदियां, बंदा तृप्त हो जाता, रज जाता, बड़ी खुशी नाल अपने शरीर को त्यागदा। जिवें भाई महा सिंह ने हस हस के फिर अपना शरीर त्याग दिता, कहा सच्चे पातशाह सारे बंधन तोड़ दिते, बहुत परोपकार किया। इस तरह भगत कबीर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है जिह बाज ना जिया जाए, उस तो बिना साडे कोलों जिया नहीं जा सकता। जो मिले तां काल अखाई, जे आराधना करनी है तो उसकी करो, जिस तो बिना जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं है। तो जिस दिन वो प्राप्त होएगा उदों सारियां ही भुखा मिट जाणगियां। उस विच आप जी ने हुण तक 5 शब्दों की विचार सरवण की है। सोरठ राग है। भगत कबीर जी की जो उच्चारण की हुई बाणी है उसके 5 शब्दों के विचार हुण तक हुई है। जो शिवा शब्द है उसकी कथा आरंभ करते हैं। मन बिरतियां एकाग्र करके आप सरवण करो जी। सतनाम वाहिगुरु साहब जी। जिह बाज ना जिया जाए, जो मिले तां खाल अखाई। सद जीवन भलो कहाही, मूए बिन जीवन नाही। भगत कबीर जी बनारस ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो भगत जी के अगे एक जग्यासू ने बेनती की कि भगत जी कृपा करके दसो कि आराधना किसकी करनी चाहिए है, क्योंकि हिंदू मत विच 33 करोड़ देवते मन्ने जाते हैं तो 9 करोड़ देवियां मन्नियां जांदियां। तो वक्खो वक्खरे तरीके नाल उन्हां दी पूजा की जाती है, उन्हां दे इष्ट वक्खो वक्खरे ने। ये गल सुन करके भगत जी ने ये वचन किए भी आराधना तो उसकी करनी चाहिए है जिह बाज ना जिया जाए, कि जिस तो बाजों जिस तो बिना बंदा जिउंदा ही नहीं रह सकता, कि इंसान की होंद ही खत्म हो जाती है जिस तो बिना।
जितने भी जीव ने वो सारे ही जे जिਉਂਦੇ जागते दिखाई देंदे है तो परमेश्वर की सता करके है, परमेश्वर की शक्ति करके है। जिवें सतगुरु महाराज के बचन ने आसा दी वार विच भी कि सच्चे पातशाह जी कहते ने, सो क्यों मनों विसारीए, कि उस परमात्मा नूं मनों नहीं भुलाउणा चाहिदा कि जिसने ये आत्मा दिती है, शरीर दिता है, होर बेअंत बख्शिशां कीतियां ने कि जियो पाए पिंड जन सज्जिया, दिता पहनण खान। जियो का अर्थ आत्मा, पिंड का अर्थ है शरीर। जिसने आत्मा दिती, शरीर दिता, फिर दिता पहनण खान, फिर शरीर के पहनण वास्ते कपड़े भी दिते, शरीर नूं जिउंदा रखण वास्ते अन्न पानी भी दिता। तो इस तरह परमात्मा जिहड़ा है वो जीवां नूं पहला तो आत्मा दिंदा है, फिर शरीर साजदा है, फिर उन्हां दी खुराक का भी प्रबंध करता है। जो वाहिगुरु है जिस तो बिना कोई जिउंदा रह ही नहीं सकता, कि जिवें सतगुरां ने वचन कीते आनंद साहिब दे विच, ए शरीरा मेरिया हर तो मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। जे जोत रखी गई तद ही तो जगत विच आए हाँ। जे वो जोत ना रखदा तो असी जगत विच आए नहीं सकते, साडा जन्म हो ही नहीं सकता। साडा जन्म हुंदा ही तद है जदों वाहिगुरु अपनी शक्ति, अपनी जोत, अपना प्रकाश, अपना नूर इस शरीर विच पाउंदा है तद। ते इस शरीर विचों जदों वो आत्मा, वो प्रकाश, वो नूर निकल जाता है तो यह शरीर जिहड़ा ढह ढेरी हो जाता है। इस करके कबीर जी कहन लगे कि बेशक बेअंत दुनिया ते पीर फकंबर ने, औलिए ने, देवते ने, देवियां ने, अवतारी पुरुष ने, सबना का सत्कार है, पर सबना ने यही गल आके दुनिया को कही है कि जिह बाज ना जिया जाए, कि जिस तो बिना साड़ी कोई जिंदगी नहीं है। जे जिंदगी है तो परमात्मा दे आसरे, ते जिस परमात्मा दे आसरे ये शरीर है, जिस परमात्मा दे आसरे ये साडी आत्मा है, जिस परमात्मा दे आसरे साडे अंदर मन काम करता है, जीव आत्मा काम करता है, उस परमात्मा को किवें भुलाया जाए। तो जो मूल नूं भुल जाते हैं, खुआर भी उही हुंदे है, भटकणा विच भी उही पैंदे है, वहम भी उन्हां अंदर ही आउंदे है, भरम भी उन्हां अंदर ही पैंदे है जो एक नूं विसार दिंदे है। ते जितने महापुरख हुंदे है उन्हां सारियां दा जोर लगदा है यही गल कहण विच कि रब एक है, एक नूं पहचानो, एक दी आराधना करो, एक दा ही सिमरन करो। असी केवल रस्ता दसदे हाँ, तुहाडा सहारा बनदे हाँ, तुहानूं पहुंचावांगे उत्थे जिथों तुसीं तुरे हो। तो यात्रा आरंभ हुई है परमात्मा तो आत्मा दी। तो आत्मा कई पड़ावां विचों लंघ के आउंदी है, फिर मनुख बनता है, फिर मनुख ने आत्मा का ज्ञान लै करके परमात्मा में लीन होना है। तो भगत जी कहते हैं जदों पूजा ही दूजे की होएगी तो मुक्त नहीं होएगा। तो आराधना उसकी करनी चाहिए है जिस तो बिना जिया ही नहीं जा सकता, जिंदगी ही नहीं है। जिवें मछली का जीवन पानी है, तिवें ही हरेक मनुख जिहड़ा है उसकी जिंदगी है तो रब्बी प्रकाश करके, रब्बी नूर करके, रब की बख्शिश करके। तो जदों कोई गुरु की बरकत का पात्र बन जाए, उत्ते उपर बख्शिश हो जाए, गुरु के दसे मार्ग ते चले
कि जो गुर दसे वाट मुरीदा झोलीए। बाबा शेख फरीद की बाणी कि जेड़ा रस्ता गुरु ने दसिया है उस रस्ते जो कोई चलता है तद फिर वो जी घाल है वो थाए पैंदी है कि गुरु ने जो घालना घालन वास्ते कहा। जिवें गुरु ने कहा नाम जपो, ये बहुत वड्डी घालना है। जे कोई घाल लै, घालना का अर्थ हुंदा कमाई, जे कोई कर लै। तो गुरु नानक देव महाराज जी कहते फिर गुरु दे आखे लग के, गुरु की मर्यादा विच रह करके कि नानक हुक्म है जे बुझै। जे उसने हुक्म नूं बुझ लिया, समझ लिया कि मेरे गुरु का हुक्म की है तो मेरा मन कर की रहा है, जदों इस हुक्म नूं समझदा है तो जिहड़ी अंदरली हौमे है मैं करन वाली वो खत्म हो जाती है। जदों ही हौमे की अंदरों कंध टुट जाती है, जदों मैं मेरी खत्म हो जाती है तो अंदर की रह जाता, तू है तू है तू है। वो फिर तू दा जाप जपन लग पैंदा। जले हैं, थले हैं, अबू हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं। फिर उस परमात्मा नूं ही वेखण लग पैंदा। जल विच, थल विच, धरती विच, आकाश विच, अपने शरीर विच, बाहर विच, चार फिरे उसका प्रकाश नज़र आउण लग पैंदा। ये जो घालना कोई घालदा है तो जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। बड़ी मशक्कत है, बड़ी घालना है जे कोई नाम जप लेगा। नाम जपिया नहीं जाता। जे कोई नाम जपदा है तो गुरु वाला नहीं बनिया हुंदा, क्योंकि अमृत नहीं उन्हें छकिया हुंदा। जे कोई अमृत छक लैंदा है तो नाम तो जपदा है पर कुरैता करदा है, पूरी रहत नहीं रखदा। तो इस करके जदों कोई हुक्म नूं चंगी तरह समझदा है कि मेरा मन की कर रहा है तो गुरु मेरा की कह रहा है, तो गुरु के मुताबिक जो कोई घालना घालदा है फिर जाओ मिले तां खाल अखाई। फिर जिस परमात्मा नूं मिलण वास्ते वो घालना कर रहा सी, जिस गुरु की खुशी लैण वास्ते वो घालना घाल रहा सी, जदों वो घालना उहदी थां पै जाती है तो गुरु की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो तृप्त हो जाता, रज जाता, उहदे अंदर कोई भुख ही नहीं रह जाती कि साचे नाम की लागै भूख। कोई है अंदर भुख, केवल नाम की भुख, होर कोई भुख नहीं। काम वासना की कोई भुख नहीं, धन पदार्थ जोड़न की कोई भुख नहीं, बहुता रज के तरह तरह के पदार्थ खाण की कोई भुख नहीं। तो सतगुरु जी कहते साच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। ये मन के अंदर भुख होंदी है रूप रंग वेखण दी, मन के अंदर भुख होंदी है धन पदार्थ जोड़न दी। ये जिहड़ियां अंदरलियां वासना हैं ये साडे अंदर भुख पैदा करदियां ने, ते उन्हां दी तृप्ति हुंदी नहीं। बंदा भटकदा रहिंदा, टिका किते नहीं आउंदा, मन टिक के बैठदा नहीं। तो जदों गुरु के हुक्म असीं कमाउंदे हां, हौली हौली साडी अंदरली भुख मरदी जाती है कि वासना अंदरों खत्म हो जाती है। फिर जिंदगी जिउंदी तां रहिंदी है ते उन्नी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। दुनिया के सारे बंधन टुट जाते हैं। बंधन पैंदे भी वासना करके है, तृष्णा करके है। जदों अंदरों तृष्णा ही खत्म हो गई, जदों अंदरों वासना ही खत्म हो गई, बंधन तो सारे टुट जाएंगे। फिर अन्न पानी उतना कोई खाधा जाएगा जितना को शरीर बच जाए। तो शरीर किस वास्ते बचाना है कि परमात्मा ने